Congratulations to entire organization for having such a great effort, for putting such a great effort, bringing this together. And I'd like to congratulate Rajiv and Nigel for bringing such beautiful music, and Sharat sir for directing the video, Culture Machine, all of you. It's a cognitive effort, and I'm so glad I'm a part of this. To it's a dream for any singer to be a part of the national anthem, because as a child you watch Doordarshan and you see all the great singers and great actors do something for the nation together, and that shows how united we are as an artist fraternity. But besides that, the cause being so strong about the common people, I wouldn't want to say common people, I'd say about the people. And they are like we spoke about this earlier today, that all their efforts help us move from one day to the other, without knowing any problems and any pains in our life. So thank you, and this song is dedicated to all of them. And once again, thank you for making me a part of this. Uh, Thank you, Sunil sir. Thank you, Benny, for your. Thank you, sir. Now, I would like to invite the music directors, Rajiv and Nigel, and the director of this People's Anthem, Mr. Sharat, on stage to share few words. Uh, I don't know where to begin. It was Sharath who actually initiated this whole project, and when he came to us with the with the huge task of recreating the national anthem, a song which is so close to each and every one of us, we immediately jumped at it because we wanted to. Because it's a unique opportunity for us also to take on something as huge as this, and add our little touch to it. So we jumped at it, and only once we started trying to ideate and um, get a feel of where we need to go with this, we were a little stumped, because so many versions have already come out, so many brilliant versions have already come out, and it's also such uh, a song which is so close to everyone, which you can't tinker with much. It's something that you have to maintain its sanctity, and yet make it sound different. So we understood the challenges once we actually took it up, and I'd like to say that it has been a pleasure, and needless to say, I think every one of us also believes that the cause with which this whole idea came about, I think that is the driving force at the end of the day, and we are very eager to see the video that we are about to view right now. Nigel, you want to say Not first. I mean, it's been a long journey for me and our team. First of all, I would like to thank Carnival Group and Carnival Media, Culture Machine, Fosway design team, who have been tirelessly working day and night for creating the posters. So yeah, I mean, as Rajiv has said, it's a huge task. I mean, we are trying to attempt something like a national anthem. I mean, nation is not something about people. I mean, it's not just about regions or religions. It's about people. So initially, the discussion, which is me and Gyanashekar, the partner in our company, when we were thinking that it's high time. I mean, we have seen so many national anthems created by stalwarts, legends. So near my home, at a chai wala, and suddenly I felt that I always take this chai, but I've never bothered to think who the chai wala is. So as a filmmaker or as a creator, I felt maybe am I becoming too insensitive, or maybe am I getting too indulgent in this so-called fast world? And it's possible, yeah. I mean, we are all trapped in our own images in our head. So suddenly I asked him, "What's your name?" Then he opened up saying, "My name is Gattu, and I'm from Rajasthan." I think that kind of triggered a whole set of reaction in my head, that why don't I see India from this point of view? Why do we see India from the other side? Why don't we see India from this side? So somewhere, there have been films for me which have been very inspiring, like Swadesh, where it says we the people, where this man comes from US, Mohan Bhargav, and he reaches this small place called Charanpur. From there he meets a small farmer called Haridas Ji. And from there he starts a small revolution, the bulb revolution. So somewhere subconsciously you are constantly, you're influenced. And plus last year
I'm glad like we did a small video called GMA Radesh with Rajiv. So that's when I thought that now things have to fall in place. And so the whole idea is that if they stop, the country will stop. If they sit, the country will sit. I mean, in the sense, we just did a research that dabbawalas, I mean, there is 0.0001% of error. I mean, what kind of perfection is that? I mean, it's impossible to even think. I mean, and they are faceless heroes. So we thought that, you know, it's high time that we pay a tribute, first to begin with. Second, to bring them into, not a limelight, but somewhere just recognize them, you know, and say that, like, you're as important to me as I am important to you. You know, it's just as maybe a thank you, maybe hello, maybe hi Gattu bhai, the person who served me the chai. So yes, I mean, it's a collective effort, and so now things are taking shape, and it's a dream come true to me. I feel like a small kid getting excited standing in front of all this, you know. And so the version what you see is still in working version, because the final would be happening in next couple of days. But this is good enough to see a preview. नहीं एक ही का है तुम अपने फ्रेम उठने रखो सुनिए ना एक्सक्यूज मी सर गौरव भाई मैं क्या बोल रहा हूँ भूख से लेना है टेबल वगैरह नहीं है टेबल तो नहीं अरे यार इतना तो भी काम धाम कर रहा है जैसे लग रहा है कैसे खवाओ अरे जाके वहाँ पे खड़ा हो एक आदमी तो क्वेश्चन करना चल जाए तुम ही तो हो सबको तो लिए पहले देखिए देखिए ठीक है आपके लिए कॉमन मैन और लाइक कि आम आदमी और खास आदमी में क्या फ़र्क है मुझे सब लोग आदमी हैं भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए मैं जब मैं बात किया था इससे पहले बोला कि कॉमन जो शब्द होता है वो हमें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। बस पीपल है, हम इंडिया है क्योंकि सारे के सारे लोग हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो सॉन्ग आपने गाया है इस एल्बम में, तो वो सॉन्ग आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सबको, पूरे देश को। पूरे देश को डेडिकेट करना चाहेंगे। आप 2 लाइन मुझे गा के सुना दें कि आपने जन गण मन, नहीं जो आपने गाया हुआ है हाँ, इसमें, तो आप अपने वॉइस में गा के बताइए। जन गण मन, देखिए जन गण मन गाना तो मुझे खड़ा होके गाना पड़ेगा। हाँ तो प्लीज़ खड़ा हाँ ठीक है, आप ही खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो हो गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे, जय 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 हे। मेरा सवाल अभी आपसे कि वैसे तो भारत में जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाने में सहयोग किया, सभी का रोल बहुत ही अहम है, लेकिन एक ऐसे शख्स, एक ऐसा नाम जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर। देखिए, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग थे और रहेंगे हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है अकेले अपने बलबूते पे किया है। और आई मीन ही इज़ ऑलवेज टेकन वन स्टेप एंड द होल नेशन फॉलोड। आई मीन उस ज़माने में कौन बोले ऐसे इंसान थे कि जो बोल रहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस नारे से पूरा देश एक साथ जुड़ गया। तो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जब भी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी आती है, तो क्या आप लोग अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब स्कूल के दौर में हम लोग परेड किया करते थे? सही बात है। यही तो बात है कि बचपन से हम लोग हमारे नेशनल एंथम सुनते आ रहे, रिस्पेक्ट से खड़े होते स्कूल में बचपन से, और स्कूल में खड़े होते गाते हैं कोरस में। तो तभी जब छोटा बच्चा था तो इतना मुझे मालूम नहीं था कि हर लिरिक्स का वर्ड क्या मतलब क्या है, व्हेन यू आर वेरी स्मॉल। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते तो मुझे पता चलने लगा कि ये पूरा इंडिया के बारे में है। तो हाँ, मतलब दिस इज़ एम्बेडेड इन आवर मेमोरी, मतलब सबकॉन्शियस में ये ऑलरेडी है, ये गाना हमारे खून में है ये गाना, क्योंकि देश का गाना है, मतलब हम सबका गाना है। तो बस। तो कितना दिन लगा ये कंपोज करने में? म्यूज़िक डायरेक्टर्स वो है, मैं डायरेक्टर हूँ। अभी मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कि बहुत सारे पहले गाने आ चुके हैं और बहुत सारे अच्छे गाने आ चुके हैं जनगण मन के ऊपर, तो बहुत तैयारियां करनी पड़ी होगी। तो कितना टाइम लगा और कैसे आपने ये टोन सेलेक्ट किया है, फिर ये चीज़ सेलेक्ट की? एक्चुअली हम लोग को काफ़ी टाइम लगा है, शायद 1 या 2 हफ्ते। दो तीन वर्जन्स भी हम लोग ने ट्राई किया। शरद सर ने हमें एक रफ वीडियो कट भी दिखाया था, तो उसके ऊपर कैसा पेस क्या होना चाहिए गाने का, वो सबसे पहले वो ज़रूरी था जानना। तो जब भी वो रफ कट शरद सर ने हमको भेजा, तो उससे हमको आइडिया मिला कि क्या पेस होना चाहिए। वो एक बार सेट हो गया तो ओवरऑल प्रोडक्शन वो हमारे जो स्किल्स हैं थोड़े बहुत तो यूज़ करके बस बन गया गाना। कितना सारा वक्त लगा एक अंदाज करने में? वक्त ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि 2 हफ्ता भी बोल सकते हैं फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड मेकिंग द फर्स्ट वर्जन। तो 2 हफ्ते में शायद प्रोडक्शन एंड हमको भी वर्जन्स बनाने में हमको भी थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि टोटलिटी में सुनना था हमको। तो ऐसे नहीं कि एक वर्जन चालू किया और उसको ऐसे ही छोड़ के अगले वर्जन में गए, ऐसे भी नहीं। एक वर्जन लिया, उसको पूरा प्रोड्यूस करके ख़त्म किया, फिर उसको वीडियो के साथ देखा, रफ वीडियो के साथ, तो फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा। सो इट वाज अ कंप्लीट प्रोसेस। अभी जो मैं वीडियो देख जी। रहा था तो उसमें जो ऑडियो फीमेल वर्जन, वो वॉइस रेखा भारद्वाज जी का ही क्यों आपने सेलेक्ट किया, कोई और फीमेल सिंगर? नहीं, एक्चुअली इसमें फीमेल सिंगर्स शिल्पा राव हैं और रेखा जी हैं। तो एक चीज़ ये है कि चारों सिंगर्स जो हैं इस नेशनल एंथम में सबका वॉइस टेक्सचर अलग चाहिए था और सभी का एक यूनिक आइडेंटिटी रहना चाहिए था। तो वो हिसाब से हमको लगा कि रेखा जी और शिल्पा राव, बेनी दयाल और सलीम मर्चेंट सबके वॉइसेस के आइडेंटिटीज़ हैं, नॉट जस्ट द पर्सनैलिटीज़ बट इवन देयर वॉइसेस हैव द रियल आइडेंटिटी। सो वो हिसाब से इट जस्ट वर्कड आउट। देश के जितने भी यंगस्टर म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जी बहुत सारे अभी लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ रहे हैं जी। और कुछ जो मुंबई में हैं या फिर और भी जगहों से लोग ट्राई कर रहे हैं जी। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिपेंडेंटली स्पेसिफिकली ऐसे just keep doing what you do best, that's all. I mean whether it's the Independence Day or any other day, खास करके म्यूजिक डायरेक्टर्स को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहूँगा just keep doing what you do best. Yeah, just stay Indian. Stay Indian. थैंक यू वेरी मच। Thank you. पूछिए ना। अच्छा, आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि आप अभी किस
किस फिल्म में गाने गा रहे एक्चुअली मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यूज़ हैं मैं कुछ बताता नहीं हूँ कि कौन सा गाना आता है, लेकिन आने के बाद जब लोग पसंद करते हैं वापस इंटरव्यू के लिए आ जाते गाने हैं, पसंद तो आ इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि आने दो गानों को आने दो। अभी अभी तो सिर्फ रिलीज़ हुआ बैंगिस्तान, और अभी हमारा पीपल्स एंथम का अभी 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे इस साल मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है, पीपल्स एंथम ही है, जो कार्निवल मीडिया कर रहा है। और इन लोगों की 380 380 स्क्रीन्स अभी इंडिया में इनाग्रेट होने वाला है, और अगस्त 15 को इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट इन लोगों ने किया, बहुत बड़ी बात है। सारे के सारे जिन लोग जो भी इस प्रोजेक्ट में काम किए हैं, सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बस बहुत खुश हूँ कि हम जो सिंगर्स हैं बचपन से, देखो हम बचपन से स्कूल में हम असेंबली में हम गाते हैं अपना इंडियन नेशनल एंथम, और उसके बाद एक सिंगर बनने के बाद हम टीवी पे देखते हैं बहुत सारे सिंगर्स, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सब हमने बचपन से देखे हैं। नहीं ना सर, ये वेट किए, हम बोलने दो ना। नो सारा पता नो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम देखते आए हैं बचपन से। तो जब देश के बारे में हमें कुछ गाना हो तो बहुत गर्व की बात होती है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ हमने साथ दिया है। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि सारे के सारे कार्निवल थिएटर्स में अभी ये लोग ये एंथम प्रमोट करने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो एक बार आपने भी वो गाना मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर बने हमारा। साथ बात करने के लिए, और आप सबको इंडिपेंडेंट थैंक यू सो मच, थैंक यू। किया था वो था हाउसफुल के लिए, उसमें भी वो गाने